On that range, the operations are done. So the size of the window, or we can say the size of the range, is basically changed. It may be increased or it can be decreased based on the conditions, based on the certain conditions that we have. It is very useful for keeping track of a subset of data in an array or string. So we have already discussed this for array, that how we can perform sliding window on an array. We have discussed some different topics, some different questions on how we can perform sliding window technique on our array. Now let's discuss how this sliding window technique can be used in a string. This can be discussed here. Okay, so let's do this thing. Okay, now the next thing is the next thing that we have is we will have some problems, and using that problem we will discuss how we can perform this particular. Okay, so we will solve two problems in this video. The first is the maximum number of vowels in a substring of given length, and second is longest substring without repeating character. So both the substrings, both the problems basically have, you can see, substring in it. And that's the thing is, whenever we have to talk about subsets, substring, or a particular set of data, particular consecutive set of data, in that case, we basically use this concept of sliding window on a string. In that case, we will use this particular concept. Let's see how this concept can be done, how we can perform this particular task. So you can see one thing here, that let's take a case. Let's take this first number on this first string which is given to you. And let's understand this problem which is given to you. The problem is that for a particular string, we have to find maximum number of vowels which are present in a substring of given length. Let's say here the value of k is 3. Okay. So let's understand this problem first. So let me first add the string. Okay. This is the string which is given to you. What it is saying to us is, it is saying is that the value of k for this problem is 3. That means we have to take substrings of size 3. Substrings of size 3. And out of that substring, we have to find a substring which contains maximum number of vowels. Which contain maximum number of vowels. और हमें बताना है कि सारी सबस्ट्रिंग्स में से कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं. और बेसिकली हमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स को ही आउटपुट करना है कि कितने सबसे ज्यादा वॉवेल्स आ सकते हैं एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग. ठीक, जैसे ये है. तो इसके लिए अगर बात करूं तो आप बहुत सारे डिफरेंट सबस्ट्रिंग आएंगी साइज 3 की, बिकॉज यहाँ पर आपको के की वैल्यू 3 है. इसका मतलब कि आपको 3 साइज की सबस्ट्रिंग लेनी होगी. ठीक, अब देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट सबस्ट्रिंग. हमारे पास वॉवेल कितने होते हैं? ए ई आई ओ. तो इस पहले सबस्ट्रिंग में देखो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक आंसर ले लेंगे. आंसर स्टार्टिंग में 0 होगा और उस आंसर में हम लोग जो भी मैक्सिमम, जिस भी स्ट्रिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स होंगे हम लोग वो स्टोर करा लेंगे. अब देखो कैसे हो रहा है. ठीक, तो देखो कैसे हो रहा है यहाँ पर कि हमारे पास ये ए बी सी है. ए बी सी आर गिवन हियर. नाउ दिस ए बी एंड सी आर गिवन हियर. So you can just check one thing, you can just see one thing कि in this first substring there are only one vowel. तो कितने vowel है इसमें? one vowel है. आंसर की वैल्यू होगी 1. हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगली ये आगे सबस्ट्रिंग. इन दिस सबस्ट्रिंग आल्सो देयर इज ओनली वन vowel which is I. इसके लिए 1 हो गया. आंसर 1 ही रहा. ठीक है, अगली सबस्ट्रिंग देखो ये है. अब इस सबस्ट्रिंग में एक चीज देखो आप, इसमें 2 वॉवेल्स हैं, 2 आई प्रेजेंट है. तो आंसर की वैल्यू भी 2 हो जाएगी. मैक्स रहेगी आंसर की वैल्यू. अब अगर हम लोग इस सबस्ट्रिंग की बात करें इसकी, तो यहाँ पर वॉवेल्स की वैल्यू 3 है. तो आंसर हो जाएगा 3. आगे की बात करें इस सबस्ट्रिंग में सिर्फ 2 वॉवेल है. इस सबस्ट्रिंग में भी 2 वॉवेल है. इस सबस्ट्रिंग में लास्ट वाली में सिर्फ 1 वॉवेल है. ई ई एफ में सिर्फ 1 वॉवेल है, ई. तो इन सबका मैक्सिमम कितना है? तो 3 हमारा आंसर हो. एंड यू कैन सी कि इस वाले क्वेश्चन का आउटपुट है वो 3 है. ये जो सबस्ट्रिंग थी आई आई आई, इसके बाद 3 वॉवेल्स थे. Similarly, we can take another example also. Let's take example of function up. Okay, and let's take the value of k is equal to 4.
दैट मीन्स हमें चार चार की सब स्ट्रिंग लेनी। पहले देखो सब स्ट्रिंग आई FUNC। FUNC में कितने वॉवेल हैं? FUNC में एक वॉवेल है सिर्फ, यू। वॉवेल क्या होते हैं? AEIOU। देयर ओनली वन वॉवेल, तो इसके लिए वन वॉवेल है। अगली सब स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ आई, इसमें भी देखो सिर्फ एक ही वॉवेल है, यू। अगली सब स्ट्रिंग एन से लेके आई तक है, चार चार की से लेंगे, हमें चार चार साइज की सब स्ट्रिंग लेनी है। अगली भी देखो एक ही वॉवेल है। अगली सब स्ट्रिंग में देखो दो वॉवेल है, टी से लेके ओ तक, IO दो वॉवेल है। अगली आएगी TION, उसमें भी दो वॉवेल है। अगली आएगी IONU, इसमें तीन वॉवेल है। देखो I, O और U, तीन वॉवेल यहाँ आ रहे हैं इस वाले में। और लास्ट में ये जो सब स्ट्रिंग बनी इसमें दो वॉवेल होंगे। तो अगर सबका मैक्सिमम देख लें, सबसे मैक्सिमम किस सब स्ट्रिंग में? ये जो सब स्ट्रिंग यहाँ से आ रही है इसमें की ION, इसमें तीन वॉवेल्स हैं, तो तीन हमारा क्या है? 3 हमारा है आंसर। इस तरीके से हमें यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ। तो एक गिवन लेंथ की सब स्ट्रिंग में मैक्सिमम कितने वॉवेल्स हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम वॉवेल्स आर देयर? दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। गॉट इट? ओके, ग्रेट। सो now let's see one thing, see how it can be performed, how this operation can be done using sliding window technique. So here what we will take variable size sliding window, or we can also take the same size, because यहाँ पर देखो हमें दो तरीके की स्लाइडिंग विंडो पढ़नी है। एक स्लाइडिंग विंडो होगी जिसमें साइज फिक्स होगा, साइज हमेशा फिक्स होगा। तो ऐसी स्लाइडिंग विंडो में क्या होगा? अगर साइज फिक्स है, इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा के साइज की ही लेनी है, ठीक। हमें हमेशा के साइज की ही इंडेक्स लेनी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो ये है फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, याद रखना। ये क्या है? ये है फिक्स साइज, बिकॉज साइज इसका फिक्स है। तो आपके एलिमेंट्स होंगे हमेशा चार चार साइज की ही सब स्ट्रिंग लोग। ये जो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है ये फिक्स स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, नॉट वेरिएबल। एक होती है वेरिएबल विंडो साइज, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल टेक टू वेरिएबल्स। फर्स्ट इज द स्टार्ट एंड सेकंड इज द एंड, और वी कैन आल्सो टेक इवन वन वेरिएबल ओनली। सो लेट्स टेक, इसके लिए हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे जो होगा आई, ठीक है। लेट्स टेक अ वेरिएबल आई। आई क्या होगा? तो पहले होगा हमें जो सबसे पहली सब स्ट्रिंग आएगी चार लेंथ की, वो जो ये बनेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे और एक काउंट में कितने वॉवेल्स थे वहां पर वो काउंट कर लेंगे। तो देखो अभी तक इस सब स्ट्रिंग में सिर्फ एक वॉवेल था, सिर्फ एक वॉवेल था वॉवेल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए, आई हमारे यहाँ पर आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करें और हमारे पास एक मैक्स होगा, मैक्स काउंट होगा। उस मैक्स काउंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी अभी तक वो स्टोर करें। अभी तक तो वन ही आई है, मतलब सिर्फ एक वॉवेल में मिला है। अब आगे बढ़े तो अगली हमारी ये आएगी विंडो, हमें चाहिए तो फोर साइज की ना, हमारे पास के की वैल्यू फोर है। जो अगली के की वैल्यू आएगी उसमें देखो एक टी ऐड हो रहा है, एक टी ऐड हो रहा है। टी क्या वॉवेल है? टी वॉवेल नहीं है, तो हमारी काउंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। और हट क्या रहा है? डिलीट हो रहा है एफ, एफ पीछे से हट जा रहा है, और एफ भी वॉवेल नहीं है, तो हमारी काउंट की वैल्यू डिक्रीज भी नहीं होगी, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब हमारा आई जो है वो आ गया यहाँ पर, यहाँ पर। मतलब अब जो हमारी बनेगी वो अब स्लाइडिंग विंडो हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी। यू हट गया और आई ऐड हो गया। तो देखो आई ऐड हुआ है और आई एक वॉवेल है, बिकॉज आई इज अ वॉवेल एंड आई इज अ न्यू एलिमेंट विच इज एडेड। So we will increase our count to 1. But U is also deleted from the window, is discarded from the window. विंडो से हट गया, अभी तक विंडो ही आती थी, अभी तक विंडो यहाँ से यहाँ तक। तो U था और T से, U से लेकर T तक थी। अब विंडो हो गई है N से लेके I तक, क्योंकि चार साइज की चाहिए हमें। तो U हट गया और I आ गया, तो I आया उसके लिए हमने एक ऐड किया, पर U हट भी तो गया, U भी एक बबल था, हम लोग एक माइनस कर। अभी भी हमारा काउंट वन ही है, देख लो आप इस वाले विंडो के लिए भी हमारा जो काउंट है वो वन ही है, सिर्फ एक ही वॉवेल है इसमें, ठीक। अब सिमिलरली आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखते हैं कैसे होगा। अगर आप आगे देखोगे तो एक चीज देखो यहाँ पर, ये जो नेक्स्ट विंडो आएगी वो ये आ रही है। अब इस विंडो में देखो क्या हुआ, इस विंडो में एन चला गया, एन गया है और एन कोई वॉवेल नहीं था, तो हम लोग कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करें। पर ऐड क्या हुआ है? जीरो इज एडेड, सॉरी ओ इज एडेड, एंड ओ इज अ वॉवेल, ओ इज अ वॉवेल। So we'll add 1 to our count. Our count will be 2. Our count will be 2. So our max count will also be 2. Because we want maximum answer in a max count.
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला विंडो आई है। इस विंडो के लिए क्या हुआ कि हमारा सी चला गया, तो सी जो चला गया, सी जो है हमारा कोई वॉवेल नहीं था, सी इज नॉट अ वॉवेल। तो बिकॉज सी इज नॉट अ वॉवेल, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। और ऐड क्या हुआ है, ऐड हुआ है यहाँ पर हमारे पास एन, एन भी कोई भी वॉवेल नहीं है, तो ना कुछ ऐड होगा ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। अगली विंडो आती है, इस विंडो के लिए हमारे पास टी चला जाएगा, टी सब्ट्रैक्ट होगा। टी अगर डिस्कार्ड हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज टी वॉवेल नहीं था, पर यू हमारा ऐड हो रहा है और यू एक वॉवेल था, तो बिकॉज यू एक वॉवेल है, लोग फिर से इसमें +1 करके इसको 3 कर, क्योंकि यू एक वॉवेल है, यू इज अ वॉवेल एक्चुअली, ठीक है। सिमिलरली विल गो ऑन, अगले वाले के लिए क्या होगा, आई जा रहा है, पी आ रहा है। देखो आई डिस्कार्ड हुआ और आई एक वॉवेल था, आई जो डिस्कार्ड कर दिया हमने अपनी विंडो से, आई एक वॉवेल था, तुमने -1 कर दिया। और ऐड क्या हुआ है, पी, पर पी तो कोई वॉवेल है नहीं, काउंट हमारा 2 ही रह जाएगा। तो देखो हमारा काउंट मैक्सिमम 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो काउंट था वो 3 था, वो 3 था, ओके। तो हमारा जो है 3 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, 3, फाइन। 3 विल बी आर आंसर, 3 विल बी आर आंसर, ओके, ग्रेट। तो इस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस प्रॉब्लम, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया, हमारे पास एक एस दिया है, एक के दिया है, ठीक। तो मैंने पहले क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले के एलिमेंट्स होंगे उसके लिए निकाल लो कितने वॉवेल्स हैं, ठीक है। और वॉवेल चेक करने के लिए एक अलग फंक्शन बना दो कि वॉवेल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले फर्स्ट के एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे, ठीक। तो लेट्स सी दिस थिंग, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना लेते हैं, दैट विल बी अ फंक्शन चेक। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कैरेक्टर देंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर लेट्स से हम लोग देंगे एक ए, और हमें क्या चेक करना होगा, इफ दिस ए इज इक्वल टू ए, और लेट्स से इट इज सी एच कैरेक्टर ना, सी एच, ठीक है। अगर ये सी एच ए के इक्वल है या फिर सी एच ई के इक्वल है, ओके, या फिर आई ओ यू, ओके। अगर सी एच हमारा ए के इक्वल है, ई आई ओ यू इनमें से किसी के भी इक्वल है, दैट मीन्स कि हमारा वॉवेल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम लोग यहाँ से फॉल्स रिटर्न। उसके बाद चेक कर लेते हैं क्या आता है, लेट्स से हमारे पास, तो लॉक कर लेते हैं वैल्यू को, या फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि इफ चेक, लेट्स गिव इट एस 0, देखते हैं क्या आता है। तो अगर ये है तो हम लोग एक काम करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे 0, ठीक। देखते हैं, अभी अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास पहला कैरेक्टर है वोवेल है, तो 1 आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारे पहला कैरेक्टर वोवेल है, तो 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग उसको कोई कॉन्सोनेंट दे देते हैं तो वो 0 आना चाहिए। देखते हैं हमारा चेक फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं, तो पहले चीज तो ये देखते हैं, ठीक है। हाँ, इट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो हमारा जो चेक फंक्शन है वो बिल्कुल सही वर्क कर, वो चेक कर पा रहा है कि हमारे पास जो कैरेक्टर दिया गया वो वोवेल है कि नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक पहले तो काउंट लेंगे, let c is equal to 0, then we will have a let max count, that will also be 0 in c, okay. Now what we will do, at first of all we'll check for the first k element. So what I will do, I will take a loop till k, okay, because first of all I want for first k element कि भाई जो पहले के k elements हैं उनमें कितने वोवेल हैं वो पहले निकाल लो, फिर आगे जाते जाएंगे, जैसे कोई ऐड होगा वो देख लेंगे वोवेल है कि नहीं, और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हटाएंगे डिस्कार्ड करेंगे वो देख लेंगे। ये तो कर रहे थे, पहले के देखते हैं, 0 से लेके k-1 तक, ठीक है। इफ चेक एस आई, अगर जो एस आई है हमारा, इफ दैट नंबर इज अ वोवेल, वी आर इंक्रीजिंग द काउंट। तो ये हमारा पहले के लिए आ गया,
पहले वाले के लिए आ गया। हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग मैक्स काउंट को इंक्रीज करें, मैक्स काउंट हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स काउंट कॉमा सी। ओके, दिस विल बी डन। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू गाइस कि हम लोग एक फॉर लेंगे, I will be equal to k, I will be less than the length of this s, बिल्कुल लास्ट तक जाएगा, ठीक है, I will प्लस, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि हमने पता लगा लिया कि अभी अभी मैं सब कुछ एरेज कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि मैंने पहले के एलिमेंट्स के लिए की की वैल्यू 1 है, तो सिर्फ एक वोवेल है, मैक्स काउंट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे के से, तो हमने एक एलिमेंट नया ऐड किया। अगर हम लोग इस आई, ये मान लो आई है, इफ वी आर एडिंग ith एलिमेंट, तो हमें आई माइनस के एलिमेंट को माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों? लेट्स से दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमारी साइज है 4 विंडो की। तो अगर हम लोग एक फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो हमें 4 माइनस 4 मतलब 0 वाले इंडेक्स को हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही में लेना है, हमें 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इफ दैट चेक ऑफ आई माइनस के इज ट्रू, मतलब जो आई माइनस के वाला जो एलिमेंट है जो हम लोग हटा रहे हैं, अगर वो वॉवेल था तो हम लोग काउंट को माइनस माइनस, भाई वो हम लोग ने हटा दिया तो एक वॉवेल कम हो गया हमारी विंडो से। और इफ चेक ऑफ आई, अगर हम लोग अभी जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं अगर वो वॉवेल है तो हम लोग सी प्लस पे, ठीक है। और हर स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैक्स जो भी सी होगा हम लोग मैक्स काउंट में स्टोर कर लेंगे। एट द लास्ट वी विल सिंपली रिटर्न मैक्स काउंट, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड। ओके, तो कुछ गलत हुआ आई थिंक, लेट्स सी बिकॉज आंसर नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर आई माइनस के कर दिया, सॉरी, ये तो एस ऑफ आई माइनस के होगा ना, हमें इंटीजर देना, वो देना पड़ेगा ना, सॉरी। एस ऑफ आई और एस ऑफ, मतलब हमें कैरेक्टर चेक करना, आई एम जस्ट गिविंग द इंडेक्स, सॉरी, मैं कैरेक्टर चेक करना था ना यहाँ पे कि वो कैरेक्टर वोवेल है कि नहीं है। मैं यहाँ पे इंडेक्स चेक कर रहा था, अब सही है, वो सही आ गया ना। अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। ओके, हमारा सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम with 96.99% fast, okay, memory usage is also very low. This is how we basically solve this particular, this is how we can just solve this particular problem. Okay, great, great guys, great, fine. Now let's see for the next problem. This problem, in this problem you can see that हमारी जो विंडो साइज था हमेशा k था, हमेशा k था, हम लोग जैसे आगे एक एलिमेंट लेते थे पिछला हटा देते थे, बट दैट विल नॉट ऑलवेज हैपन, कभी कभी कुछ कंडीशंस अलग हो जाती हैं, दैट इज व्हाट वेरिएबल साइज्ड विंडो, variable window size. Now let's see question, let's solve the problem for that case when there is a variable window size, okay. अगला क्वेश्चन देखो क्या है, the question is that we have to find longest substring without repeating character. We have to find the longest substring without repeating character, एक सबस्ट्रिंग जिसमें कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर ना, ठीक है। लेट्स सी दिस थिंग, तो पहला वाला हम लोग ले लेते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं एंड लेट्स चेक हाउ दिस कैन बी सॉल्व। ये हमारी स्ट्रिंग है, अब इसमें देखो हमें कोई भी सब स्ट्रिंग का साइज नहीं दिया हुआ है, इसी साइज की सब स्ट्रिंग चाहिए, कोई भी सब स्ट्रिंग हो लॉन्गेस्ट चाहिए जिसमें बस रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो, कैरेक्टर्स रिपीट ना हो रहे हैं, बाकी कुछ भी हो मैंने मतलब नहीं है। ओनली थिंग इज कि कैरेक्टर्स जो है वो रिपीट ना हो रहे हैं, कैरेक्टर्स शुड नॉट बी रिपीटिंग, ठीक है। तो अब देखो पहले करते हैं, स्टार्टिंग शुरू करते हैं। तो हमने पहले एक लिया, भाई हम हमें मतलब यहाँ पे एक आंसर लिख लेंगे या मैक्स लेंथ लिख लेंगे कि मैक्स लेंथ कितनी है। अभी आपने देखा कि और यहाँ पे लिख लेंगे करंट लेंथ कितनी, अभी देखोगे हमारी जो करंट लेंथ है एक है, तो मैक्स लेंथ होगी एक, हाँ भाई हमारे पास अभी एक साइज की मिल गई स्ट्रिंग, इसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है।
देखो इसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है, नहीं है। अगला आओ, क्या अभी कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक? नहीं है। मैक्स लेंथ 2 हो गई। क्या अभी कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है? नहीं है। ए बी सी तीनों अलग अलग कैरेक्टर ना भाई, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो मैक्स लेंथ 3 होगी। अब जब आप आगे आओगे तो देखोगे यहाँ पे एक रिपीटिंग कैरेक्टर। इस रिपीटिंग कैरेक्टर को कैसे हटाया जाए? तो फॉर दैट व्हाट यू विल डू कि हम लोग पीछे से एक कैरेक्टर हटा देंगे जब तक कोई रिपीटेबल जाए ना, तो हम लोग इतना ले लेंगे, ये बेबी तक 3 ही रहेगा। अब आगे आएंगे फिर से 2 भी हो गए, इस बी को हटा देंगे, इतने लेंगे। आगे गए 2 सी हो गए, सी को हटा दिया, इन तीनों को ले लिया। अब देखो आगे गए, अब देखो इसके आगे देखो, हम लोग यहाँ तक जा चुके थे, अभी तो हमारे पास इतनी स्ट्रिंग थी। हमने आगे गए, हमने हमारे पास 2 एस सी आ गए, तो हमने एक सी को हटा दिया, हमने एक सी को हटा दिया, ठीक। तो हमारे पास अभी हम लोग ऐसे आ चुके थे, ए बी सी, ठीक। अब देखो, अब जब हम लोग इसके आगे जाएंगे इस वाली स्ट्रिंग हटाने के लिए, इसको लेने के लिए, तो हमारी सब स्ट्रिंग हो जाएगी ये कुछ ऐसी, और इसमें हमारे पास 2 बी हो जाएंगे, एक ये है एक ये है, ओके। तो 2 बी होने के बाद हमें एक भी हटाना पड़ेगा, हम लोग हटाते हैं हमेशा स्टार्टिंग से, तो हम लोग पहले तो एक हटाएंगे, एक कैरेक्टर हटा देंगे यहाँ से, तो ये ए बी सी बी की जगह सिर्फ और सिर्फ बी सी बी हो जाएगा भाई, हमने ए हटा दिया यहाँ से, छोटी कर दी विंडो। अभी भी देखोगे तब भी 2 बी है हमारे पास, तो हम लोग एक बार और आएंगे इधर, तो एक बार और आएंगे तो विंडो हमारी साइज कितनी बचेगी? बचेगी, तो विंडो से हमारे पास 2 बचे। अब देखो कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, 2 विंडो से बची हमारे पास। दिस ये होता है वेरिएबल साइज विंडो, कि विंडो साइज जो है फिक्स नहीं है, एक थी फिर 2 हुई फिर 3 हुई, फिर 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 3 हुई फिर 3, अब 2 ही बची। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी, इसको बोलते हैं वेरिएबल विंडो साइज। अब इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लेट्स सी ऑन दैट थिंग। तो देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंटर होगा, एक एंड पॉइंटर होगा, एक स्टार्ट और एक एंड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जगह कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे ये कौन सा कैरेक्टर हम लोग ले चुके हैं, ताकि वो कैरेक्टर हमारे पास दोबारा ना आए, ताकि वो कैरेक्टर हमारे पास दोबारा ना आए, ठीक है। तो लेट्स सी कि कि हम लोग एक फ्रीक्वेंसी करके ले लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी करके ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 चीजें, एक स्टार्ट है और एक एंड है, दोनों अभी 0 0 पे। स्टार्ट एंड का मतलब क्या है कि हमारी जो विंडो है, हमारी जो सब स्ट्रिंग वो स्टार्ट से शुरू हो रही है एंड पे खत्म हो रही है। तो फिलहाल हमारी विंडो से इतनी है, एक। तो हमने क्या किया, कि हमने हमारी फ्रीक्वेंसी में लिख दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए है वो एक है हमारी विंडो में, हमारी विंडो में एक ए है हमारे पास, ठीक है। अब हमने अपने एंड को आगे बढ़ाया, हमारा एंड यहाँ पर आ गया। पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो नया कैरेक्टर आया है क्या है हमारी विंडो में पहले से प्रेजेंट है कि नहीं है। और आप देखो कि बी हमारे पास पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू, भाई बी भी हमारे पास एक आ गया है। अब और हम लोग एक जगह पे मैक्स लेंथ भी लिख रहे होंगे, मैक्स लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 2। ये 2 कैसे निकालेंगे, ये बेसिकली होगा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। अगर आप देखोगे इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, तो एंड है 1, स्टार्ट है 0, तो इस एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक के बीच का कैरेक्टर साइज कितना होता है? एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, 1 माइनस 0 प्लस 1, इट विल बी 2। दो ही तो दो लेंथ के है ना, इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक। चलो अब आगे बढ़े, अब एंड और आगे बढ़ गया, एंड इज नाउ एट हियर। उसने फिर देखा जो नया कैरेक्टर वो है सी, अभी तक सी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था हमारी फ्रीक्वेंसी, तो हमने सी कैरेक्टर को यहाँ पर प्रेजेंट किया, और अब लेंथ हो गई 3, ठीक। अब हम लोग फिर आगे बढ़े, अब एंड आ गया यहाँ पर, बट एक प्रॉब्लम हो गई, इसको एंड को आगे बढ़ाने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पहले से तो नहीं पीछे प्रेजेंट था। हाँ, ये एंड पहले से हमारी फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अभी हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अभी हमारा एंड यहीं पर ही रहेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक हम लोग वहां तक ना पहुंच पाए कि ये डबल ए ना मिले, हमें डबल ए नहीं चाहिए, ठीक। तो हमने स्टार्ट को एक बार आगे बढ़ाया, और हमने यहाँ पर इस फ्रिक्वेंसी 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ए था हमने हटा दिया उसको हमारी विंडो से, डिस्कार्ड कर दिया, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हमने 0 कर दी।
अब हम लोग ए को आगे बढ़ाएंगे, अब हम लोग ए को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास एंड पहले से ए पहले से नहीं है, हमने ए को आगे बढ़ाया, फिर से ए जो है 1 हो गया। अब फिर से एंड आगे बढ़ाएंगे, फिर से तुम देखोगे एंड आगे बढ़ाएंगे तो बी 2 बार हो जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट को आगे करेंगे, तब हम लोग एंड को आगे। अभी भी बी है एक ही बार, पर वो वाला बी हट के ये वाला बी आगे। ठीक, तो अभी हमारे पास देखो मैक्स लेंथ हमारी 3 है, 3 से बड़ी लेंथ अभी तक हुई नहीं है, 3 ही रहेगी। ठीक है, ऐसे आप सी के लिए भी करोगे तो हमारे पास जो सी के लिए होगा तो एंड इधर आ जाएगा एंड स्टार्ट विल बी हियर। अब देखो, अब स्टार्ट के बाद अगला है बी, स्टार्ट के बाद अगला है बी, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, स्टार्ट यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर होगा। देखो स्टार्ट एंड के बाद अगला बी है, पर बी पहले से हमारी विंडो में प्रेजेंट है, देखो ये बी प्रेजेंट है ना, तुम लोग मतलब बी नहीं ले सकते, तो या तो पहले हमें बी को यहाँ से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, हमने स्टार्ट को एक बार आगे बढ़ाया, स्टार्ट को हमने एक बार आगे बढ़ाया, एक बार आगे बढ़ाने से क्या हुआ, हमारा स्टार्ट जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, और हमारा जो ए की फ्रीक्वेंसी थी वो फिर से 0 हो गई। भैया ए हमारी विंडो में नहीं है। अभी भी आप देखो बी तो है ना विंडो में, तो अभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, बी दोबारा दूसरा बी नहीं ले सकते क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट चाहिए। क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चाहिए तो कभी रिपीट ना करे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इस बी को आगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट को, स्टार्ट आ गया यहाँ पर। अब बी भी 0 हो गई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बी भी हमारी विंडो में नहीं है। जब भी हम लोग स्टार्ट को बढ़ाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे। ठीक, अब यू कैन सी कि हाँ फ्रीक्वेंसी बी की 0, अब ये एंड जो है आगे बढ़ सकता है, अब ये एंड यहाँ से उठ के यहाँ पर जाएगा आगे, अब इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। जब तक हमारे पास रिपीट, जब तक अगर हमारे पास अगला कैरेक्टर रिपीटिंग कैरेक्टर है, जब तक वो रिपीटिंग ना हो तब तक स्टार्ट को बढ़ाते हैं। ये बेसिक हमारा प्रोसेस होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दिस विल बी आवर कंप्लीट प्रोसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रोसेस टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, I hope it is clear to everyone. I hope it is clear to everyone. Okay. Now, let's see how we can code this thing, how we can write the implementation of this particular thing that we have discussed. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू कि हम लोग एक फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी में हमें स्टोर करना है। तो लेट्स टेक अ ऑब्जेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी है किसकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होगी या फिर 0 होगी, क्योंकि हम लोग 2 कभी होने ही नहीं देंगे फ्रीक्वेंसी। जब भी 2 हो रही होगी हम लोग पहले उसको 0 करेंगे, तब एक एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा एक कैरेक्टर एक ही बार चाहिए, हमें रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग में तो फ्रीक्वेंसी हो सकती है 2 बार, पर हमारी सब स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होगी 2 बार। जो विंडो हम लोग लेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी रखे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक आई स्टार्ट, तो लेट्स स्टार्ट इज इक्वल, अब एंड जो है हमारा, एंड जो है वो 0 से लेके पूरा लास्ट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, एस डॉट लेंथ तक जाएगा। एंड को हम लोग प्लस प्लस कर दें। ठीक है, एंड को हम लोग प्लस प्लस कर रहे होंगे। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एंड इज इक्वल टू 1, मतलब वो पहले से ही 1 है। तो जब तक वो पहले से 1 हो, जब तक वाइल कर देना, वाइल, जब तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी है अगले कैरेक्टर की, जो अगला कैरेक्टर हमारा हम लोग लेने वाले हैं, जब तक वो फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर है हम लोग, अगला कैरेक्टर है बी, तो तब तक, और बी पहले से भी है हमारी विंडो में, जब तक बी हट ना जाए विंडो से तब तक बढ़ते जाओ। तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ एस स्टार्ट, जो भी एस में होगा स्टार्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर देंगे। भाई अब वो हमने, हमारे पास नहीं है, हम लोग स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे। दैट मीन्स कि हमने जो स्टार्ट था हमारे, जो कर रहे थे हम लोग स्टार्ट को आगे आगे भेज रहे थे। जैसे कि अगर आप देखोगे, हम लोग जब यहाँ पर थे, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर थे स्टार्ट, एंड यहाँ पर था, एंड यहाँ पर था, तो जो एंड का अगला वाला एंड था यहाँ पर, यहाँ पे बी था हमारे, ये बी है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी 1 थी, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 1 थी। तो हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट को आगे कर दिया था ताकि ये हमारे विंडोज चला जाए। हमने स्टार्ट को आगे कर दिया तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया था। ठीक,
जब तक ऐसा होगा फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या करें, हम लोग फिर से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ एंड है उसको हम लोग वन कर दें। वन मतलब कि हाँ अब हमने इस चीज को हमारे हमारे सर्विस में इंक्लूड कर लिया है इस एंड को। भाई अब एक बार यहाँ से डिस्कार्ड किया तो यहाँ पर आके एंड लाके इसको ऐड भी तो करेंगे बी को, तो बी की फ्रीक्वेंसी तो वन ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक इंट और लेट आंसर ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो होगा। उस आंसर में हम लोग स्टोर करेंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जो साइज है, साइज कैसे निकालना था मैंने बताया था, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द साइज, and at the last we simply return. This is what you will do at the last. Let's run this code. Let's see if we are right. Yeah, we are absolutely right. Let's check for all the test cases. Great. Let's submit it. Okay, we have solved this particular problem too. Okay, so this is what the concept of sliding window is. Okay, we have discussed two types of problem. The first was fixed size window. Fixed size window, जहां हमें पता था कि जो विंडो साइज है वो के ही होगा, जो मैंने बोला था कि एक गिवन लेंथ के लिए सभी निकालनी है। ठीक है, और एक था वेरिएबल साइज विंडो। वेरिएबल साइज विंडो, वेरिएबल साइज विंडो क्या होता है, जब हमारा विंडो का साइज जो वेरिएबल था दूसरे वाले में, हमें लॉन्गेस्ट सर्विसिंग बतानी थी, हमें उसका साइज कंफर्म नहीं था, तो हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं। अदरवाइज वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग दिस। दो तरीके के हमने यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो पढ़े हैं, एक है वेरी फिक्स्ड साइज विंडो, अनदर वन इज वेरिएबल साइज। So there are two types of sliding window. There are two types of sliding window technique that we basically that we use in our particular problem. Okay, so this is what, and you can, if we talk about the time complexity and space complexity, that we have not discussed. So let's see both the code. For first code, you will see that we have not used any extra space. We have not used any extra. Okay, we are just checking that whether a number is vowel or not, and we are just iterating from zero to the length. So in that case, what will happen is that our time complexity will be just order of n. And in the second case also, if you will see, what is the time complexity? So in the second case also, the time complexity is just order of n only. But here we are also storing the frequency. So we can say that they are default because we have a heavy frequency, but frequency will have at max 26 characters. Obviously, अल्फाबेट 26 कैरेक्टर्स होते हैं, उससे ज्यादा होते नहीं है, तो वो एट मैक्स 26 कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। तो उसकी भी साइज जो है ऑर्डर ऑफ 26 बोल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, या ऑर्डर ऑफ डिस्टेंट कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे डिस्टेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो दैट विल बी, सो मैंने बेसिकली दोनों ही हमने प्रोग्राम जो है ऑर्डर ऑफ एन में। इसी जगह अगर आप एक एक सर्विसिंग ले करते, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब तक भी आपको सोल्यूशन कर सकता था। दैट इज व्हाई दिस स्लाइडिंग विंडो टेक्निक makes our problem easy, and this is how we can apply sliding window technique on strings. I hope you have got this video. Okay,